دیکھیں گے اب وہ مشورہ دیتے کہتے میاں اگر عرس بھاری کرنا ہے تو اب کس کو بلانا پڑے گا؟ سپنا چودھری کو. اب کس کو بلانا پڑے گا؟ شیخ چلی کو. کس کو بلانا پڑے گا؟ تسلیم عارف کو. کس کو بلانا پڑے گا؟ ٹینا کو. کس کو بلانا پڑے گا؟ اور مجھے سب کے نام یاد نہیں, موبائلوں میں دیکھو کہ مقابلہ ہوگا. وہ اجازت دے دیتا ہے کیونکہ وہ کئی پیڑھیوں سے اگر پھاوڑا چلائے, پسینے کی کمائی کھائے تو اسے پتا چلے وہ تو وہاں پہ گلک کا کھا رہا ہے, لوٹ رہا ہے, وہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ لیکن اپنا کھائے کمائے. ان لوگوں سے پوچھو جو محنت کر دو, کہتا ہاں بلا لو, ہاں بلا لو. کوئی کہتا صاحب اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا, کوئی کہتا اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. تم کیوں نہیں کہتے؟ کوئی گاؤں میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے ایک سال مدرسہ ایسا چلاؤ جہاں سے 10 حافظ قرآن ہو, پورے مدرسے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. تو مر جائے گا مگر جنت تیرے نام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان قرآن. یہ بات نا لوگ دوسری طرف لے جاتے ہیں. بخدا میں اللہ سے ڈر کے طرف دوسری طرف نہیں لے جا رہا ہوں. میں یہ علاقے میں بہت آیا اس وجہ سے عرس کو اب بگاڑ دیا. ایک گلاس پانی میں, ایک گلاس دودھ میں پانی نہیں ڈالا, پیشاب ڈل گیا. اور لوگ سمجھ رہے ہیں ہر جگہ عرس ہے, بڑی سجاوٹ, بڑے بھیڑ بھاڑ. ارے بڑا دین کا کام. ایمانداری سے بتاؤ یہ دین کا کام؟ بگاڑنے کا طریقہ یہی ہے. یہ بگاڑ دیا عرس. تو یار اللہ کے ولی ہو, اگر اللہ کے ولی کی نظر کرم ہو جائے تو بچ سکتا کوئی؟ بچ سکتا کوئی؟ ہاں تم ضرور جاؤ. ابھی تو نذرانے پہ بھی لڑائی ہوگی, کمیٹی والے کے لیے پریشان ہے. ہاں ابھی تو ہوگی, لیکن توجہ رکھو میری طرف, میری طرف توجہ رکھو, غور کرو یار, ایمانداری سے بتاؤ. ایک عرس کی بات, ایک عرس کی بات. اب دوسری چیز پہ آ جاؤ. اب دوسری چیز نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد. علم حاصل کرو ماں کی گود سے خبر تک. بے شک جلسہ اور تھوڑا سا آ جاؤ جلوس محمدی پہ آؤ, ہلکا سا. یار ہمارے آقا سے بہتر کوئی نہیں نا جی, ان کے جلوس سے بہتر کسی کا جلوس نہیں. بے شک آقا کا جلوس اس شان سے ہونا چاہیے تھا. لوگ آقا کے اخلاق کو دیکھ کر کے, یہ مولانا لوگ ہم لوگ بیان کرتے ہیں, کٹر دل لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. بے شک. اور اپنے پاس کیا اخلاق, اپنا کیا کردار ہے؟ جلوس محمدی نکل رہا ہے. کچھ نوجوان لفنگے ٹائپ کے وہ نکلے صاحب غلام نبی بن کے, ہری پٹی باندھ لی یہاں سر سے, ریبن لپیٹ لیے سر سے, اور نعرے لگاتے ہوئے الٹے سیدھے جب چلے, جس مکان پہ لڑکی چھت پہ کھڑی ہے, بیٹا ہٹا دو نا موبائل, چھت پہ لڑکیاں کھڑی ہے, عورتیں کھڑی ہے, سن لیے میری بات, عورتیں کھڑی ہے, آدمی نہیں, تیری میری بہن بیٹیاں کھڑی ہے. باس ان کی رگوں میں شیطان دوڑتا ہے. نعرہ کس کا لگا رہا ہے؟ یہ ہے میرے نبی کی شان. بچہ بچہ قربان, اور اوپر کو دیکھ رہا, ہاتھ پاؤں پھینک رہا, اوپر کو دیکھ رہا, ہاتھ پاؤں کود رہا, ناچ رہا. ایمان سے بتاؤ یہ نبی کی محبت میں کود رہا ہے یا ان کی رگوں میں شیطان تو بگاڑ دیا؟ ڈیجو کے ساتھ جلوس نکلتا اور ایسی ایسی نعت پڑھ دی گئی ہے بالکل جیسے گانا گایا جا رہا ہے, بالکل گانے کے ڈھنگ پہ نعت. شراب جب حرام ہوئی تھی نا تو نبی نے وہ برتن بھی پھینکوا دیے تھے جن سے شراب پی جاتی ہے, الگ ہوتے تھے, تاکہ ان کو شراب کی یاد نہ آ جائے. اور آج نعتیں, کچھ شاعر نعتیں پڑھ کے گانوں کی, میں نے ایسے دیکھا لڑکے یوں کرتے ایسے کرتے, وہ
तौबा तौबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अगर मेरी बात गलत हो तो वापस करो। नाथ वो 16 आया और 16 कहते नहीं कहते, इतना डीजा इतना वो बचता है, लड़के रिबिन लेके झंडिए लेके डीसीएम के ऊपर जुलूस मोहम्मदी में डांस कर रहा है। तुम्हारा दीन मजहब यही था? औलाद किसकी कटी है? भांजे किसके कटे करबला में? भतीजे किसके गए? यार हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, लोग हमारे हाथ चूम रहे। वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे थे, उनका मकाम क्या था? बेशक कोई देखे तो देखे, औलाद दीन को बचा दिया। आज हुसैन पाक खुश हो रहे होंगे, यार हमारा खानदान कटा, इन्हें मजा आ रहा। एक मरतबा ठंडे दिमाग से अगर सोच लो, मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक से कहा था, अबू बकर तुम जन्नत में, बेशक हो गए जन्नत में। उमर तुम जन्नत में, उस्मान गनी तुम जन्नत, मौला अली तुम जन्नत में। 10 सहाबा को वही बताया तुम जन्नत में, तुम जन्नत में, बेशक जिनको अशरे मुबश्शरा कहते हैं। और नबी को जब जब जिसकी बात अच्छी लगती रही नबी फरमाते गए। तो अब जब जन्नती हो गए तो अब नमाज की जरूरत कहां रही, रोजे की जरूरत कहां रही? हजरत अबू बकर सिद्दीक की नबी के फरमान के बाद कोई माई का लाल दिखा देगा कि उसके बाद भी अगर एक टाइम की नमाज छूटी, हजरत उमर की छूटी, हजरत उस्मान गनी मौला अली की छूटी, नमाज का कोई पैगाम नहीं, नमाज की कोई बात नहीं। मैं तो ये कहता हूं जब तक नमाज का पाबंद नहीं होगा उस वक्त तक वली हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, मेरे नबी से लेकर के करीब नवाज तक और अब के वलियों तक एक भी ऐसा नहीं है जो बेनमाज है। बेशक गुंडे कहीं के उस पे बैठ गए मज़ारों पे बेनमाजी। एक तो हजरत दिल पिघल गया, मालूम है वो आता है गांजा और चरस और नशे की क्या क्या चीज होती, सुल्फा, बस वो ऐसा करके मला या जो भी तरीका उसका चिलम में रखा और मारा, ऐसे पी को धुआं छोड़ा और धुएं पे कह रहा हक अली हक अली हक अली, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तबीयत ये चाहती है ना, अगर इनके बाप का मामला होता तो मैं कहता, हजरत अली क्या फरमाते सुनो, कुरान शरीफ जाके उठा के देखो, दूसरा सिपारा, ये लोग हैं वयसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। पूछो इनसे कुरान की आयत है कि नहीं, दूसरे सिपारे की। इसकी शान नुजूल में कुरान शरीफ के सफ़े पर लिखा हुआ है। हजरत अली खुद फरमाते हैं, क्या वाकया, हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो और उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए, उस जमीन में घास जमाए, उस घास को मेरी बकरियां खा ले, अली फरमाते अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिए। बेशक बेशक बेशक। और तू कहां जा पी के हक अली कर रहा? मारा जाएगा इस मुसंडे को, तब मारा जाएगा, पहले इन्हें चूर चूर कर दिया जाएगा। और ये लोग क्या बदजन करते हैं ना, बोला नमाज पढ़ने से सब कुछ थोड़ी मिलता है, ये सब इनसे दूर रहा, बस यही इन्हीं के यहाँ रहते रहो, बस फुलपा पीते रहो, बस हमारा हाथ पकड़ो, जन्नत तुम्हारे अब्बा की, पहले तू तो जाइए जन्नत में, तेरे अब्बा की दो बता। यार मजाक बना के रख दिया, टिट्टा बना के रख दिया है। मैंने मिसाल दूध वाली दी, एक एक चीज, मुहर्रम शरीफ, यार हर आदमी का आंसू आना चाहिए। फिर 10 मुहर्रम होती है करबला में, क्या हुआ था ये तो सबको मालूम है। इमाम हुसैन नबी के इतने चहीते थे, मेरे नबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन पीठ पे बैठ गए, नबी ने सजदे सर ही नहीं उठाया। आदमी इतना ऊंचा होता है, हुसैन अगर गिर भी जाते हाथ पांव थोड़ी टूटते, सजदे में इतने ऊंचा में अगर उठ जाते तो गिर जाते, हाथ पांव थोड़ी टूटते, मगर मोहब्बत दिखा दी, मैं कितनी मोहब्बत करता हूं। जुमे के दिन अगर इमाम खुतबा पढ़ते हो, जायज काम करना भी उनके लिए जायज नहीं,
कोई काम नहीं करेंगे, खुतबा पढ़ेंगे, بے شک खुतबा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हुसैन पाक वहां गिर गए, नबी ने खुतबा छोड़ दिया, जाकर हुसैन को उठाया। بے شک हुसैन पाक 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में लेटे शहीद हुए। हजरत अली के एक बेटे और जिनका नाम हजरत अब्बास, उनके बाजू कट गए, वो भी शहीद हुए लेके। بے شک हजरत इमाम हसन के बेटे जिनका नाम हजरत कासिम, उनको शहीद किया। जालिमों ने उनकी लाश पे घोड़े दौड़ा दौड़ा के लाश के टुकड़े कर दिए, उनको एक दुपट्टे में बांध के उनकी लाश को रखा गया। वो वहां हजरत इमाम हुसैन के सगे भांजे जिनका नाम औनो मोहम्मद था, वो भी शहीद वही हुए लेटे। हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के बच्चे खूबसूरत जवाब, हजरत अली असगर, वो भी शहीद हुए, रेत पे लेटे। ये सैयदजादे जिनका जिक्र कुरान में है, जिनका जिक्र हदीसों में है, समझे, और जिन पे अगर दुरूद ना पढ़ो तुम्हारी नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये वो लोग, हजरत सकीना रो रही है, आंखों में आंसू, मेरे बाबा 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 कहाँ है, बाबा कहाँ है? तलाश रही है, मेरे बाबा का। फुप्पो का दामन पकड़े, कहाँ बाबा? अब फुप्पो कैसे बताएं बेटा तुम्हारे बाप शहीद हो गए? कहा तुम्हारे नाना के दीन को जिंदा करने गए तो वो कामयाब हो गए। अब भी तसल्ली करे। एक जालिम ने थप्पड़ मारा था मुंह, हुसैन की सगी बेटी के मुंह। तुम्हारे अगर थप्पड़ मार देना कोई, जमीन बेच दोगे, थाने कचहरी लगा दोगे। بے شک थप्पड़ मारा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक के सगे बेटे या गिरेबान पकड़ के खींच लिया, इतने कोड़े मारे, इतने कोड़े, जगह जगह से जुब्बा फट गया, खून छिनकने लगा, खून। ये आलम था 10 मुहर्रम को करबला में सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी, जिनकी पाकी के बारे में कुरान की आयत है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मुझे बताओ कि कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता है? ये सारी चीज हाथ बांध दिए, किसी के आगे को, किसी के पीछे को, 2-2 3-3 को इकट्ठा करके उनके हाथ बांध दिए। वो सैयदजादियां, वो सैयदजादियां, वो सैयदजादियां। आज ही हमसे इतनी मोहब्बत दुआ के लिए करेंगे यार, आंखों में 1400 साल में डायरेक्ट वो तो हजरत अली के बेटे और बेटियां हैं। بے شک हजरत अली के 10 मुहर्रम को ये हुआ, और जैसे ना अहलों के हाथ में आया, तुम्हारे यहां भी 10 मुहर्रम को करबला होती, क्या होता है? 10 लड़कियों की इज्जत पे हाथ डल जाता है। गुंडे लड़के लड़कियां आपस में मोबाइल के जरिए मिलने जा रहे हैं। करबला इसीलिए थी। करबला में यही हुआ, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। तुम्हारे यहां जलेबी टूट रही है करबला में, खिलौनों की दुकानें, छोटे छोटे बच्चों को कांधे बिठा के, जैसे किसी का अब्बा की शादी हुई आज की। क्या हुआ 10 मुहर्रम? झूले झूले जा रहे हैं, जवान बेटियां जा रही है, जवान बेटी मेकअप करके जा रही है। मस्जिद में जाना जायज नहीं है, तो करबला में मेल में जाना कौन जायज करेगा? ये कौन बताएगा? लेकिन सुनो, 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, और तुम्हारी औलाद क्या कर रही है, हमारी औलाद क्या कर रही है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। कोई हिंदू गला नहीं काट रहा, कोई दूसरा नहीं सता रहा, हमें कोई और नहीं रुला रहा, हमें अपने रुला रहे, अपने रुला रहे, अपने रुला रहे। 10 मुहर्रम को करबला में नबी के बच्चों ने दीन को बचाया था, और हमारे बच्चे अपनी इज्जत निजाम। کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ झगड़े पे झगड़े, झगड़े पे झगड़े। بے شک क्यों ना अहलों के हाथ में गया ये? अब फतवे निकलेंगे, कोई कह रहा है मुहर्रम जायज है, कोई कह रहा है नाजायज है, कोई कह रहा है इतना जायज, कोई कह रहा है उतना जायज, कोई कह रहा है भूल जायज, कोई कह रहा है नाजायज। दिमाग से सोचो, अगर इमाम हुसैन पाक का कोई रोजा बनाए, करबला मुअल्ला का नक्शा बनाए, तो जायज है। بے شک समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन हालात बिगाड़ दिए, कौन कहेगा, कौन बोलेगा? ये हमारे अल्लाह मौलाना अफसर साहब आ गए, ये मेहनतें रहती हैं, काबिश है, मगर
फिर मैं कह करके तशरीफ रखते, इनकी जिम्मेदारियां रहती हैं मेजबानी अदा कर रहे, मेहमानों को विदा करने में। लेकिन तवज्जो रखो यार, 10 मुहर्रम को ईमानदारी से बताओ, कौन सोचेगा यार क्या हुआ था? इज्जतें लुटी थी, और वो भी हमारी बहन बेटियों की। गांवों में ना कहीं कहीं करबला नदी के किनारे होती है, गन्ने के खेत होते हैं, चढ़ कटा हुआ होता, मुझे मैक पे बयान करने में शर्म आती है, तुम सब जानते हो। ऐसे हालात, नाजुक हालात, वजह क्या है? कार उसके हाथ में दे दी जो चलाना नहीं जानता, अंधे के हाथ में कलम दे दिया जो लिखना नहीं जानता, लंगड़े के हाथ में, समझे, लंगड़े के हाथ में भागने की बागडोर दे दी जिससे चला नहीं जानता, बगैर हाथ वाले के हथकटे के हाथ में तलवार दे रहे हो के लिए जंग कर लो। हमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? समझना पड़ेगा, अभी टाइम दूर नहीं। एक एक चीज को उठा उठा करके देखिएगा। जरूरत फिर मदरसों की, जरूरत फिर ये आलिम बने, मां के पेट से पैदा आलिम नहीं हुए, मैं आलिम बना मां के पेट से नहीं। ये जितने पढ़े, जितने पढ़े, गरीब नवाज गौसे पाक जिसको भी अगर जो आलिम है उसको बता दो, अगर मादरजाद वली है वो बात अलग है। अगर जिसने फजीलत की डिग्री हासिल की है, इल्म लदुन्नी है, वो बात अलग है। इतना अमल ही नहीं रहा, इतना कोई साहिब नजर ही नहीं रहा इस दौर में जो इल्म लदुन्नी आएगा, जहां पर रास्ते, जहां पर सारी चीजें, जहां से बरकते फैजान मिलने का रास्ता था, वहां तुमने गुंडे बिठा रखे हैं, वो मुजाबिर बिठा रखे हैं, कोई शेख चिल्ली को बुला रहा। तुम्हें मालूम है आला हजरत कितना चर्चा हुआ, आला हजरत इतने बड़े मुफ्ती थे, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े, 13 साल की उम्र में फतवा लिखना शुरू कर दिया था, मगर क्यों इस खानका में जाकर उनके बाप ने डाल दिया? क्यों खानका में उनके बाप ने डाल दिया? जाओ मारेरा शरीफ, रोशनी मिलेगी, रोशनी मिलेगी। उनके बाप भी मुफ्ती थे, मुफ्ती नकी अली खान, अपने बेटे को लिया, जाओ मारेरा शरीफ, सैयद आले रसूल बरकात के कदमों पर डाल दिया कि हुजूर इनका सिलसिला बड़े पीर से जोड़ दीजिए। ये बल्ब जलाने के लिए इसे जहां से लाइट आ रही है वहां कनेक्शन करना पड़ा, वरना ये 50,000 की हो तब भी नहीं जलेगी। ये कितनी कीमती हो, नहीं जलेगी। इसका रोशनी के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? कनेक्शन। कनेक्शन सारे काट दिए, खत्म कर दिए, सारी चीजें खत्म। यही मैं बता रहा था, जिसकी अगर बागडोर शरीयत में अगर जब भी तबीयत मिलाई गई है तभी बिगाड़ हुआ।